धन्यवाद मैडम। बजट के प्रस्ताव पर बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स बात किए हैं। उन सब के हर एक विषय के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने से पहले थोड़ा बजट के विषय पहले सामने रखना चाह रही हूँ। सर, मैडम, this budget is a budget which is prepared as the first budget in the second quarter of the 21st century. इसीलिए ये बजट 2026 से लेकर के 2050 तक का बहुत सारे विषयों को इसमें जोड़ता है। Then we are also starting the new five-year cycle of the next Finance Commission, the 16th Finance Commission, which starts from 1st April 2026. And therefore, the estimates are largely on the recommendations of the Finance Commission. So I'm taking care of the next 5 years as per the recommendations. Then coming to 26-27, you're looking at 1 year's budget. So in other words, this is, as Honorable Prime Minister said before the commencement of this budget session, that this is the first budget of the second quarter of 21st century, and truly it has got many of those features in it. That is why you're looking at some of the long-term investments that we are making today, which will have bearing in the long term. Whether you're talking of the Biopharma Shakti, the very thing that where we are highlighting how biosimilars will be an answer to many of those life-threatening diseases. And that takes a long time to evolve. You invest today, biosimilar arrives after several years. But India should have a lead in that, and therefore even in this budget, we've provided for research in biopharma and making sure that we will be leaders in biologics and biosimilars. The same is the spirit which guided us when we said we need to have India's Semiconductor Mission 2.0, the second edition of it. And in that, I'd like to highlight that I've spent a brief mention of investing in cutting-edge areas like carbon capture. Because carbon capture is a very important means through which our 2070 net zero goal can be achieved. We have mentioned about carbon capture also. The strategy, the technology, and the ways to do it are all evolving, but even as it is evolving, we have invested in it so that we can be a leader in that. By doing these, which are somewhat leading us towards a medium and a long term, we are also continuing our push in building infrastructure. Now, it's not just roads, it's not just national highways, it's also looking at waterways so that the cost of logistics in this country can come down, and states which are very much in the hinterland, not connected to any seaport, will have the advantage of moving goods faster at a lesser cost. So we very clearly created freight corridors as part of the very exclusive land on the surface transport, but equally spending resources and planning for infrastructure through waterways, national waterways. Even as we are doing this, Madam Deputy Speaker, emphasis on labor-intensive sectors and giving them emphasis so that not just they can have more resources to improve, but even looking at legacy industries which are waiting for rejuvenation have been funded. I'll take the example of building champions out of MSMEs, particularly the medium-sized units, which do not want to grow out of the MSME category, even though they have the capacity, even though they have every strength. But even in the last budget, we expanded the definition of MSME so that even if they go beyond a certain level in their turnover, they'll still be defined as MSME. They don't lose out on their benefits.
But this budget, we've taken that a bit further and very clearly announced ways in which such medium-sized industries, which have potential to grow and export and also become champions in their sectors, can be given further help. And I've announced several steps towards equity help, professional help, and also making sure that they will have liquidity access. And in the process of 3 ways in which we want to reach them, we are giving them the support which, even if they will be leaders in their sectors, so that they can participate in India's growth. Is this only for industries? And is it not going to concentrate, is this budget not going to concentrate on building manpower so that our youth can aspire in a particular sphere of activity to go with skills in his hand or her hand and achieve, can aspire in a particular sphere of activity to go with skills in his hand or her hand and achieve jobs or become entrepreneurs themselves. In this, I would like to highlight 2 major announcements that we've made, in which I have not named any states. In fact, I have openly said, for creating this big facility, states can aspire, any state can aspire, going through the PM Gati Shakti filters. If you think you have a proposition in your hand, any state can ask for one of the 5 that I've announced in terms of the allied and health service, where we want to set up medical hubs. States can aspire to be a part of it, wherein all the aspects of medical education and hospitals for treatment of patients can all be focused in one area, where nurses or any other 10 different allied health services will have their institutions through which people can learn, get themselves skilled, find jobs there itself, and that will become a medical tourism hub. So any state can qualify, and I'm sure states which have traditional strength can also be coming in for it. And this includes Ayush as well. So this is a major forward-looking proposition, wherein immediately, because of the medical tourism advantage that India has, this will become a center of multi-purpose, multi-speciality allied health service center through which we can promote medical health, medical tourism. So that was one of the major announcements. Similarly, we have said, instead of waiting to qualify and finishing your education and coming out and seeking where should they go for acquiring skills, the skilling element can be brought into education itself, and at the end of the day, when they come out, students can say, I can become entrepreneur, and this kind of a mega center can be kept next to any industrial cluster that any state has. So these mega entrepreneurship building centers as education hubs can also be coming up from any state. We are willing to work with the states so that this mammoth higher education center can be propped up, and therefore students can go there, come out as entrepreneurs, get to doing businesses. So if we've done these 2 in the major education-related activity, health-related activity, we've also openly said that mega textile parks, we are willing to work with states, particularly looking at industrial textiles, looking at textiles which are going to be new age, which are now becoming a part of manufacturing in industries, whether they manufacture a car, where the safety cushion which comes in is all completely made out of industrial textiles. So these kind of new age textile requirements can also be produced. So these are major announcements, and I welcome any state which wants to come into this area. The center is willing to work with them and promote it. If this is all being done at the level of youth and students and larger centers where jobs and education can go together, health and education can go together, health and providing services to patients who come from different parts of the world come together. We are also placing emphasis in animal husbandry, fisheries, to make sure that in every district you get the facilities
for a veterinary surgeon, veterinary hospital, testing labs, so that animal husbandry can be given that priority immediately in the rural areas. So farmers or those who are not farmers who want to get into animal husbandry can also benefit. That is why these announcements for fishing sector, it goes along with money being put in for restoring 500 Amrit Sarovars, the waterways, and the particular waterway which has been, national waterway which has been announced, also has institutions of excellence along its course, along the course of the river, so that shipbuilding, boat building, particularly I mentioned this, the route in which the national waterway is being announced, which will end up covering all the mineral-rich parts of the country and linking up with Paradip or with Dhamra port, is passing through states where the Nishad log can become boat makers, and they're already experts in it. They can also teach people. They can become part of the Institute of Excellence, so that inland shipbuilding for the transporting of huge logistical facilities will all have the support of the local experts who for generations have done this work. They can also benefit in this growth. Equally, ma'am, as I said, not just helping the MSMEs which are new, but also the old and legacy industries, 200 legacy clusters which have been known for decades as those places which supported MSME, and from there they produce and export. It can be any of them. It can be Ludhiana, it can be Jalandhar, or it can be Kanpur, or it can be centers near Bihar, it can be anywhere in Bengal. So any legacy cluster, 200, we have volunteered that it can be funded, upgraded, given the modern instruments, hardware, software that is required, we will be undertaking that. Other than also providing for girls' hostel in every district, so that girls do not hesitate to take up to science education, which requires long-term, long hours to be spent in the colleges and universities. All of them, not just the girls' hostel, but the training, the internship, and the kind of programs that we're looking at education centers are all with AI provisioning. So AI education is not anymore kept at elite levels. It's going to be available for all our young. So if I very quickly move to mention the numbers, madam. Gross tax receipts are at 44.04 lakh crore in this BE. It's about 8% more than what was in BE of RE of 25-26. 3.26 lakh crores more than the RE. And if I were to look at the total expenditure, madam, for 26-27, it's at 53.47 lakh crores, so much more than what we receive as tax receipts. The capital expenditure is at 12.22 lakh crores, which is 3.1% of GDP, and also 11.5% higher than the RE 25-26. Of this, I'm glad to say, on the recommendation of finance ministers from the states who met me before the budget preparation, which is a normal calendar event which before every budget I meet up with the state finance ministers, on their recommendation and accepting their recommendation, capital expenditure grant that we grant, call it loan without interest for 50 years, which eventually would be equivalent to a grant, has been increased on their request to 2 lakh crores under SASCI, and that is very much for their capital expenditure. Many states have actually shown that some of the signature projects of their states have been completed over the years since 2021, when we have been giving them SASCI, 50 years interest-free capital expenditure, money which goes to the states. So with this, the effective capital expenditure, although I said capital expenditure is 12.2 lakh crores, the effective capital expenditure, which includes the grants that I give to the states as well, is
17.1 lakh crores, which is 4.4% of the GDP, which goes only to build India in the states and everywhere else, union territories and so on. So states and union territory put together for the capital expenditure, 17.1 lakh crore is being given effectively. I'm not spending too much time on the fiscal summary, Madam. Fiscal deficit, as you know, for this coming year has been pegged at 4.3%. There are, of course, quite a few honourable members who said it's by restricting your expenditure that you've come to that fiscal consolidation. I'll explain it, that it is not by restricting the expenditure, but I can expand on that a bit later. The resources transferred to the states. Often we are accused of not really transferring the 41%, which the Finance Commission has recommended, that Government of India should give 41% of devolvable tax to the states. It's not 41%. I will assure this House through you, Madam, 41% it is that we have transferred to the states. We have not reduced any states transferred devolvable tax which has to go. And that I will also bring in the details. Total resources to be transferred to the states, including the devolution of states' share in taxes and releases that are made under the centrally sponsored scheme in 26-27, the coming year, is estimated to be at 25.44 lakh crores. इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा इस साल, आने वाले साल, 25.44 lakh crores. This entails an increase of 2.70 lakh crores. ये पिछले इस साल जो मार्च तक है, उस साल से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 2.7 लाख करोड़ का इंक्रीज है 25-26 में, और 3.78 lakh crore more than the actuals of 24-25. So इतना स्पष्ट इंक्रीज स्टेट्स को जा रहा है. और इसके साथ साथ मैडम, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कैसा है? इंडस्ट्रीज काम करने के लिए, छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे उद्योगों के लिए टोटल क्रेडिट has actually expanded by 13.8% in the current financial year. As of January 15th, 2026, non-food bank credit has grown by 13%, and the non-bank credit, which is NBFC, has grown by 15.4% at the same period. So credit का कोई कमी नहीं है. I want to highlight the fact, Madam, the 16th Finance Commission, whose report I had tabled in this House, has very clearly said, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आता है कि सेंटर स्टेट्स को देने वाले पैसा नहीं दे रही है, उसका विषय में फिनांस कमीशन अध्ययन करने के बाद उनका बयान है रिपोर्ट में. मैं आई एम नॉट एग्जैक्टली कोटिंग इट, आई एम पुटिंग दैट वो रिपोर्ट में क्या कहा गया. 16th Finance Commission analyzed the state's share transferred by the center to the states from 2018-19 to 22-23 and concluded that in each of these years the devolution made by the center exactly matches the recommendation of the Finance Commission. So सिर्फ हम नहीं क्लेम कर रहे हैं, फिनांस कमीशन ही विस्तार से इसको अध्ययन करने के बाद उनका रिपोर्ट में ये बताया गया कि सेंटर से जो पैसा स्टेट्स को जाना है, ये उदाहरण लेकर के 18-19 to 20-22-23 इन सालों का विषय में अध्ययन करने के बाद स्पष्टता से बोला है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जितने भी पैसा जाना है वो टिक गया है स्टेट्स को. कोई इसमें शक करने का गुंजाइश नहीं है. क्योंकि इस विषय में इतना स्पष्टता से मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सबको मालूम है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ. ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू मतलब टोटल
टैक्स से जितना कलेक्ट होता है उसको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। वो सेसेस भी और सरचार्जेस भी उसमें शामिल होता है, वो अलग है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के बाद नेट प्रोसीड्स क्या है, ये निर्णय करने वाले सीएजी है। नेट प्रोसीड मतलब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो अमाउंट है उससे सेस को हटा दो, सरचार्ज को हटा दो, उसके बाद जितनी भी है उसको डिविजिबल पूल कहते हैं, वो ही है नेट प्रोसीड। उससे हम 41% स्टेट्स को भेजा है कि नहीं भेजा है, उसका अध्ययन होना चाहिए, ना कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के ऊपर। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सेस भी है, सरचार्ज भी है। सो जब डांटना है केंद्र सरकार को, आप सेस भी कलेक्ट कर रही हो, सरचार्ज भी कलेक्ट कर रही हो, हाँ कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रावधान है सेस कलेक्ट कर सकते हैं और सरचार्ज कलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। वो हटाने के बाद जो पूल रहता है उसके ऊपर आपको 41% मिलना चाहिए। वो मिल रही है कि नहीं मिल रहे, आप उसके ऊपर कैलकुलेट करो, ना कि जीटीआर के ऊपर, और उसके बाद बोलोगे कि सेस भी आप कलेक्ट कर रही हो और उससे हमें कम भी दे रही हो। नो, यू कांट हैव इट बोथ वेज। So I think we should be very clear। और ये Annex 4A और Annex 4B, sorry, माननीय सदस्यगण, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। माननीय मंत्री जी, कंटिन्यू। Yes, there is less accountability. The CAG also has said that. So the concerns that the state raised is that if you take everything in cess, then what are the states left with? Like even the new schemes, if you keep cutting, then what will the states have? That's the limited point I think the opposition is raising. I don't think there's any allegation about it. It's just to what. There's no suffering to the states even on that score, Madam Honorable Member. I'd like to explain that as well, and I will go into the detail with that as well. Cesses and surcharges, cesses particularly are collected for a particular purpose. Health cess, education cess, road cess, इन सब में जितने भी कलेक्ट होते हैं वो हमारे काम में नहीं आता है, वो स्टेट्स को जाता है उस पर्पस के लिए। स्कूल बनाओ, एजुकेशन सेस, हेल्थ सेंटर में कुछ कमी है, मशीन्स खरीद लो, उसके लिए जाता है हेल्थ सेस। रोड सेस, रोड बनाने में जाता है, और जितना कलेक्शन हुआ उससे ज्यादा ही हम स्टेट्स को दे रहे, वो नंबर के साथ मैं अभी बताऊं। इसलिए सेंटर कलेक्ट करता है, ये नहीं है कि वो सेंटर ही उपयोग करता है। आखिर सेंटर के पास कोई रोड नहीं है और सेंटर के पास सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ऐसे भी नहीं है। हॉस्पिटल हर जगह पर है, और हर जगह पर जितनी भी हॉस्पिटल है स्टेट के साथ हम शेयर करते हैं। सो सेस कलेक्ट करने के बावजूद पैसा जाता है स्टेट्स को ही। सो ये आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन दैट, एंड वो नंबर भी मैं देती हूँ। और रिसीट बजट में, क्योंकि ऑनरेबल मेंबर्स इस विषय में बहुत रुचि लेते हैं, ये बोलना चाहती हूँ। रिसीट बजट एक डॉक्यूमेंट है, बजट के समय बजट डॉक्यूमेंट के साथ वो भी आता है। उसमें Annex 4A और 4B देख लीजिए, उसमें CAG ऑडिटेड नंबर का बयान उसमें रहता है, आप देख सकते हैं। हम हमारे बजट को रिफॉर्म करने के रास्ते पे चलते एक नया रिसीट बजट में जोड़ा है, 4C। वो 4C भी ही हर साल आता है। उस 4C से आपको और क्लियरली डेटा मिलेगा कि कहाँ जा रहा है पैसा। ये भी फिनांस कमीशन अभी रेकमेंड भी कर रहे हैं कि हर साल आप डेटा निकालो उसका, वो निकाल रहे हैं। और हमारे बजट के डॉक्यूमेंट में, रिसीट में वो भी है, सिर्फ मेंबर्स का जानकारी के लिए मैं देना चाहती हूँ। और इसमें से मैं शुरू कर रही हूँ ऑनरेबल मेंबर्स का क्वेश्चंस।
Honorable N.K. Premchandran ji had asked related to this. आप अभी टारगेट डेट टू जीडीपी में जा रही हो विदाउट अमेंडिंग द एफआरबीएम, ये प्रश्न था उनका। मैं उनको कहना चाह रही हूँ, डेट टू जीडीपी रेशियो ये नया टारगेट कुछ नहीं है। अलॉन्ग विद फिस्कल डेफिसिट, डेट टू जीडीपी ऑलरेडी इंक्लूडेड है एज अ टारगेट। 2018 अमेंडमेंट ऑफ द एफआरबीएम एक्ट में वो बनाया गया है वो प्रावधान। This is mentioned under the section 41B of the FRBM Act. इसके कारण हम ये स्पष्टता से कह सकते हैं, गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी टू अचीव विकसित भारत is to provide capital investment in the economy. For that purpose, we have allocated effectively 17.15 lakh crore, and this will work as a force multiplier and therefore accelerate our move towards Viksit Bharat, and this will be a very important factor in achieving Viksit Bharat, not by moving this or that. We have not moved, both are available through the FRBM Act. मैडम, बहुत सारे लोग युवाओं के लिए बात किए और ये विषय था कि कुछ ऐसे नया पॉलिसी नए ले आ रहे जिससे युवा के लिए रोजगार मिले और उनको कैसे क्या स्कीम्स के द्वारा अटेंड कर रहे हैं। मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने पहले ही बताया, 5 रीजनल मेडिकल हब्स मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देगा, उसके साथ साथ 1 लाख अपॉर्चुनिटीज इन द नेक्स्ट 5 years उस एक स्कीम के द्वारा होने वाले हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के उस बड़ा स्कीम के द्वारा। फिर 5 न्यू इंडस्ट्रियल टू टेक्सटाइल सेक्टर टू लेदर सेक्टर मेजर पार्क्स जो बना रहे हैं, उसमें भी हम मानते हैं नया उद्योग और जॉब्स होने का संभावना क्लियरली दिखता है। एल्डरली केयर के लिए हमारी केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम तैयार कर रहे हैं इस साल विद स्किल्स, जो कि वो वेलनेस, योगा एंड असिस्टिव डिवाइस ऑपरेशन सब कर पाएंगे। इसीलिए सीधा ये 1.5 लाख लोगों को इस साल ही अपॉर्चुनिटीज जॉब के नाते मिलेगा। इसके अलावा लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फॉर वेटनरी प्रोफेशनल्स टू बी अवेलेबल एज वेटनरी प्रोफेशनल्स, गांवों में वेटनरी प्रोफेशनल के रोल में काम करने के लिए 20,000 से ज़्यादा लोग को इसमें तुरंत इस साल ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, उनको जॉब्स मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि हमने आइकॉनिक टूरिज्म सेंटर्स का अनाउंसमेंट की, उसको साथ साथ जोड़ने वाले एक स्कीम, जॉब से भी जोड़ने वाली एक स्कीम है। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को हम तैयार करेंगे इसी साल। 20 आइकॉनिक सेंटर्स, टूरिज्म सेंटर्स में होंगे वो, और 12 वीक का ट्रेनिंग जो ऑनलाइन भी, सीधा भी, पर्सन टू पर्सन भी होगा। इससे ट्रेन्ड टूरिस्ट गाइड्स ये आइकॉनिक सेंटर्स में अपने रोजगार बढ़ावा कर सकते हैं। श्री मार्ट्स, ये भी अनाउंसमेंट हुआ है। एसएचजी ग्रुप्स के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे प्रोत्साहन मिलता है, उनको कॉर्पस मिलता है, उनके छोटे छोटे बिजनेसेस कराने के लिए मदद मिलता है। बैंक्स भी उनको उनके कॉर्पस को मन में रखते हुए उनको लोन्स भी एक्सटेंड करते हैं विद सम कंसिडरेशन इन द रेट्स। इसी एसएचजी ग्रुप को फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसमें इतने सारे गांवों में आज हम जाने में, आई एम श्योर ऑनरेबल मेंबर्स जाने के समय अब मिल सकते हैं कितने लखपति दीदी हर गांव में अभी सामने आ रहे हैं। उनका नंबर हम बढ़ाने के लिए भी अनाउंसमेंट की है। और ये महिला आज सिर्फ उनके अपने ग्रुप में ना करते हुए, मैडम मैं आपके सामने ये कहना चाहती हूँ, मैं नागालैंड गई थी, उधर नेशनल रूरल
लाइवलीहुड मिशन के द्वारा थोड़ा कम ट्रेनिंग पाए हुए महिला आज सामने होकर के बोल रहे हैं मेरा अपना दुकान चलाना चाह रही हूँ। वो कपड़े में हो सकता है, लोकल अचार हो सकता है, या लोकल कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है। इन महिलाओं को आज उनके अपने एंटरप्राइज खोलने का इतना आतुर है। उनको हम ट्रेनिंग भी करेंगे, उनको बैंक के द्वारा असिस्टेंस भी देंगे। सो शी मार्ट का मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर, सेल्फ हेल्प ग्रुप से निकले हुए महिलाओं को प्रोत्साहन देना, उनको सपोर्ट देना, मार्केटिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करना। इस शी मार्ट का अनाउंसमेंट, ये ट्रांसिशन जो होता है क्रेडिट लेड लाइवलीहुड, उससे बाहर आकर के आज उनके अपने चलाने वाले एंटरप्रेन्योर तैयार करना, वो भी महिला के बीच में, इज अ मेजर अनाउंसमेंट। फिर दिव्यांगजन कौशल योजना, कस्टमाइज ट्रेनिंग देंगे जिनको कैसे किस रूट पे जाना है, विद सेंसिटिविटी एंड डिग्निटी इंटैक्ट फॉर दिव्यांगजन। उनको आईटी में सेक्टर पा सकते हैं, या तो एबीजीसी में सेक्टर, जिसको अभी बड़ा प्रोत्साहन मिला, वो वेव्स कॉन्फ्रेंस के बाद भारत में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रही है। इनमें ये दिव्यांगजन लोगों को आईटी सेक्टर में भी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, एबीजीसी में भी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी उनको जॉब्स मिलेगा। ऐसे हर एक सेक्टर के ऊपर ध्यान रख के हम जॉब्स के लिए, युवाओं के लिए ट्रेनिंग, इन सब में एआई का एक्सपोजर भी उनको दिलवा रहे हैं। मैडम, एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत प्रश्न उठाए गए, उनको भी मैं कहना चाह रही हूँ कि टेक्नोलॉजी एआई ड्रिवन एडवाइजरी, वो भारत विस्तार के द्वारा ये मल्टीलिंगुअल एआई टूल होगा। एग्री स्टैक जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट गए, हर फार्मर को आइडेंटिफाई करके उनके क्रॉप है, उनके सॉइल हेल्थ कैसा है, उनको कितना फर्टिलाइजर आवश्यकता होगा, ये सब का विषय कंप्लीटली डिजिटाइज रूप में एग्री स्टैक में रखे हैं। इनफैक्ट एग्री स्टैक हमारे यूपीआई स्टैक जैसे बड़ा नेक्स्ट भारत का एक इनोवेटिव अप्रोच टू डिजिटाइज एग्रीकल्चर, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, फार्मर का इनकम बढ़ाने के लिए ये एग्री स्टैक पोर्टल और आईसीएआर का एक पैकेज भी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर। कौन सा बीज अच्छा क्वालिटी है उसको टेस्ट करने का, और क्या एक्सटेंशन ट्रेनिंग दिलवाना है, इरिगेशन कितना कैसे होना, ये दोनों का एग्री स्टैक जो डिपार्टमेंट का है और आईसीएआर पैकेज जो क्वालिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सीड एंड कल्टीवेशन, इन जो दोनों को मिल करके बेटर फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए जो साइंटिफिक बेसिस में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है उसको पूरा समर्थन हमने स्पष्टता से कही है। इससे फार्मर को रिस्क कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा। हमारे भारत के किसान को हम धन्यवाद कहना चाहिए कि इतनी सारे रिस्क जो है, बारिश आएगा, ओला होगा या क्रॉप एकदम नष्ट में आ जाएगा, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, क्वालिटी ऑफ सीड, इन सभी विषयों में उनका इतने सारे रिस्क है, फिर भी हमारे अन्नदाता सामने होकर के हमारे एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी दे रहे हैं। उनका अभी डिजिटली सपोर्ट करने के लिए ये महत् प्रयत्न है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हमने पूरे साथ देने के लिए आगे आ चुके हैं। इसके अलावा हाई वैल्यू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, क्योंकि डाइवर्सिफाई करने का आवश्यकता भी है, इसी हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और प्लांटेशन रिलेटेड मैटर्स में चलते हमने अनाउंस किया कोकोनट प्रमोशन स्कीम। इसके द्वारा ओल्ड एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज को रिप्लेस कर सकते हैं, हाई यील्डिंग सैपलिंग्स को उपयोग कर सकते हैं। 1 करोड़ फार्मर्स के लिए ये तुरंत बेनिफिट देगा। ये एक अनाउंसमेंट कोकोनट प्रमोशन के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आई वुड really appreciated if members of honorable members from particularly from Kerala who spoke about Kerala को कुछ नहीं मिल रहा,
कोकोनट केरला का जीवन धारा है मैडम। हाँ, और हमारे सरकार के द्वारा प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं, देश भर में इन्फ्लेशन रेट 1 है। टोटली इन्फ्लेशन कैलकुलेशन करने में एक नंबर आएगा नेशनल एवरेज। हर एक स्टेट में भी आजकल डेटा निकल रही है। मॉस्पी का डेटा अभी नया सीरीज जो आ रही है फरवरी 27 से, उसमें भी स्टेट्स का इन्फ्लेशन डेटा देते हैं। आप लगातार देख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई की वजह से नारियल भी चाहिए खाने पकाने में और नारियल तेल भी चाहिए। केरला के इन्फ्लेशन नंबर सिर्फ कोकोनट के किल्लत के कारण उनके इन्फ्लेशन में असर पड़ता है। भारत सरकार अभी केरल के और कोकोनट ग्रोइंग हर स्टेट में ये प्रमोशन स्कीम के द्वारा कोकोनट सप्लाई भी अच्छा रहे, कोकोनट ऑयल भी हमारे देश में खूब प्रोड्यूस हो, जिसमें स्टेट्स जो ज्यादातर कोकोनट को उपयोग करते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। सो फार्मर 1 करोड़ बेनिफिट करेंगे तो कंज्यूमर भी अच्छा कोकोनट मार्केट में आने में ये सुविधा मिलेगा। और आई एम ग्लैड केरल को कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलेगा। फिर कोकोनट ग्रोइंग बाकी स्टेट्स का भी इससे असर। दूसरा, एनके प्रेमचंद्रन जी हर साल मिलते थे मेरे से कि हमारे कैशू ग्रोवर्स के लिए कुछ करो। बाकी ऑनरेबल मेंबर्स भी मिलते थे, कुछ करो हमारे कैशू। इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर के कैशू सेल्फ सफिशिएंसी हो भारत देश में, कैशू एक्सपोर्ट हो भारत देश से, कैशू का वैल्यू एडिशन हो जाओ भारत देश में ही। ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव कैशू के लिए टोटल पैकेज, और उसका ज्यादातर आई वुड थिंक 70% बेनिफिशियरी आर इन केरला, ऑल राइट, ऑल्सो इन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। आर ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम Kakinada spoke about it this morning. So Maharashtra, Goa, completely cashew industry last few years had their own difficulties. मगर इस स्कीम के द्वारा हमने कैशू को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं। सो इन स्टेट्स में थोड़ा एक्टिवली होकर के सामने आकर इसका पूरे भरपूर उपयोग करना चाहिए इस स्कीम को। ऐसे ही कोको, आज को कर्नाटका में भी बीच में इंटरक्रॉपिंग का फैसिलिटी, वो अरेका नट ट्रीज के बीच में कोको कल्टीवेशन हो रही है भारत देश में, उसका भी सपोर्ट हम दे रहे हैं। ऐसे ही हमारे हिमालयन हिली स्टेट्स में पाइन नट का, वॉलनट्स का, आमंड्स का प्रोत्साहन इस स्कीम के द्वारा मिलेगा। और नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली त्रिपुरा एंड असम, ये अगरवुड उधर होता है, उसको लाइक साम्रानी, द फ्रैंकिनसेंस, दे यूज इट फॉर मेकिंग अगरबत्तीस। एंड साउथ ईस्ट एशिया में उसका बहुत बड़ा मार्केट रहता है। त्रिपुरा में मुझे मालूम है बहुत बड़ा वन, अगर के वन, हमारे बीजेपी सरकार आने के तुरंत बाद उधर बहुत बड़ा इनिशिएटिव हुआ करता था, वो भी इसमें से बेनिफिट होगा। लास्टली, केरला और कर्नाटका, सैंडलवुड का बेनिफिट अब तक कोई सरकार ने उसके ऊपर बात नहीं किया। मोदी जी ने उसमें डायरेक्ट मुझे आदेश दिया। भारत का कल्चर से जुड़े हुए सैंडलवुड हमारे पूजा में, हमारे घरों में रखते हैं और सैंडलवुड को सीक्रेट मानते हैं हम। उसका कल्टीवेशन ही कम हो रहा है। मुझे सुनने में आया और डेटा भी मैंने देखा, ऑस्ट्रेलिया में आज बड़ा सा सैंडलवुड का वन वो लोग तैयार कर रहे हैं। भारत को पुनः सैंडलवुड का प्रामुख्यता समझ करके हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर केम एंड सेड, यू आर फ्रॉम द साउथ, डोंट यू नो दैट यू आर लूजिंग ऑल द सैंडलवुड फॉरेस्ट। इसका
अभी मुझे ये भी मालूम है आंध्रा में नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में शायद एक व्यक्ति पिछले 25-30 इयर्स से सैंडलवुड कल्टीवेट कर रहा है, मगर वो घर उनका वन में नहीं है, ऑर्डिनरी लैंड में उन्होंने सैंडलवुड कल्टीवेट किया। मगर कानून ऐसे है वो सैंडलवुड इन द फॉरेस्ट जैसे ही उसको भी हम देखते हैं काटना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, मगर बड़ा हो गया ये किसान तो उनके अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ उसको बढ़ाया, मगर वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। सो कानून जब रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ऐसे बड़ा बड़ा जो भारत देश का संपत्ति माना जाना चाहिए, ऐसे सैंडलवुड का भी हम इस बार प्रोत्साहन दे रहे हैं। आई एम श्योर केरला, कर्नाटका एंड स्टेट्स कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। मत्स्य पालन के ऊपर 1 मिनट लेती हूं क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स उसके ऊपर भी बात किए। 500 रिजर्वायर को हम अमृत सरोवर का नाम दे रहे हैं और फिशरी वैल्यू चेन पूरे कोस्टल स्टेट्स में वैल्यू चेन बनाने के लिए हम फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उनके द्वारा वैल्यू एडिशन कोस्टल एरियाज में ही हो जाने दो, फिर उससे एक्सपोर्ट भी अच्छा बढ़ सकते हैं, वो भी हम इस बजट में प्रावधान कर चुके हैं। इसके अलावा मैडम कभी भी ऐसे प्रोत्साहन देंगे मगर एक्सपोर्ट करने के समय दिक्कत आ जाता है। ड्यूटी फ्री EEZ फिशिंग जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है हमारे समुद्र के तट में, उस पूरे इलाका में फिशिंग राइट्स हमारे फिशरमैन को मिलना चाहिए। अभी तो वो 12 किलोमीटर्स तक ही जा सकते, उसके आगे जाने में दिक्कत आ जाता है। अभी हम वी हैव amended things in such a way that they can go to the high seas also and catch fish, and that fish can be exported even from there, and every such export will be, every such selling will be considered as export. प्रोसेसिंग का भी हम बूस्ट करना चाहते हैं, उसका भी इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ चेंजेस ले आए जिससे मत्स्यकारों को बेनिफिट हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री मैंने ऑलरेडी रेफर कर चुकी हूँ, ज़्यादा उसमें और एक्सपैंड करना नहीं है, मगर लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए कैलकुलेशन जब हम करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का बायोगैस ब्लेंडेड CNG के ऊपर एक्साइज ड्यूटी जो लगाते हैं, द एंटायर वैल्यू चेन बायोगैस वैल्यू चेन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं होगा, जिससे सीधा किसान का बेनिफिट मिलेगा। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत सारे फार्मर्स काम करते हैं, उसको भी इस बजट में टैक्स में राहत दिलाए हैं, क्योंकि वो कैटल फीड उत्पादन करके उनके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी में देते हैं, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही नेशनल फाइबर स्कीम जिसमें सिल्क, वूल और जूट का भी हम प्रावधान दे रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग काम करते हैं उसमें। ऐसे ही आयुर्वेदा एक्सपोर्ट्स का भी फार्मर्स जो ऐसे हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को उत्पादन करते हैं, उनके फील्ड में उगाते हैं, उनको भी लैब्स सेटअप करके क्वालिटी मेडिसिन तैयार करने के लिए कर रहे हैं। मैडम एक विषय फार्मर के जब बात करते हैं, फार्मर के ऊपर विषय बात करते हैं, बजट एलोकेशन फॉर फर्टिलाइजर ज़्यादातर हम भूल जाते हैं। फर्टिलाइजर के लिए जो भारत में हम कुछ मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, मगर ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, खर्च भारत सरकार उठाती है और किसान को कोई कहीं कमी ना हो, और इतने भी इंपोर्ट करो मगर किसान को कमी ना हो। उसके कारण मैडम हमारे बजटरी एलोकेशन इस बार 1.71 लाख करोड़ है इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स के लिए, और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने हमारे लिए ये सेफगार्ड करने के लिए इतना एलोकेशन कर दो ऐसे डिमांड किया, हमने पूरे उसको तुरंत मंजूरी भी दे दी है, जिससे फार्मर्स को कोई शॉर्टेज ना हो। और यूरिया सब्सिडी इंटरनेशनल मार्केट का दाम के अनुसार भी कम ज़्यादा होते हैं जी, मगर आखिर
किसान को किल्लत नहीं होने देंगे हम। ये अमाउंट बार बार दिखाने में नहीं है। आप ये बात बताओ कोई किल्लत हुआ कि नहीं हुआ? कोई किल्लत नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जाकर के जो होर्डिंग करके बैठ रहा या प्लाईवुड इंडस्ट्री को भेज रहा, वो एक्शन लेना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। माननीय मंत्री प्लीज। और कोई किल्लत नहीं है। फिर मैडम, बार बार बहुत सारे लोग मखाना बोर्ड पिछले बार आपने अनाउंस किया, क्या हो गया? अनाउंस भी किया, अमाउंट भी इंक्रीज किया, और उस मखाना बोर्ड स्कीम के लिए पिछले बार, क्योंकि उस साल ही अनाउंसमेंट हुआ, 30 करोड़ हमने प्रावधान किया बोर्ड के लिए। इस बार वो 90 करोड़ इंक्रीज हुआ है, कम नहीं हुआ। और बिहार सरकार ने जमीन भी उसके लिए एलोकेट कर चुके हैं। सो उसके ऊपर जरूर आगे बढ़ेगी काम। फिर कोई ऑनरेबल मेंबर ने हमसे पूछा कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन और मिशन फॉर पल्सेस और मिशन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या हो गया उसका? बहुत अनाउंसमेंट करते हो स्कीम, आखिर क्या हो रहा? ये तीनों को हमने मर्ज कर चुके हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का नाम अभी कृषि उन्नति योजना। इसके तहत ये तीनों के लिए जो पैसा उनको मिलना है वो मिलेगा। समझ में नहीं आएगा मैडम। माननीय अखिलेश जी बात करने के समय, you have a rubber board, don't you? Haven't you got a rubber board in Kerala for years? What are you saying about rubber now? अखिलेश यादव जी ने बात करने के समय बोले नो बुलेट ट्रेन फॉर यूपी। एक एक करके मैं आती हूँ, बहुत सारे विषय बोले। क्या मैं जवाब देती हूँ आपको, डोंट वरी, यू विल गेट एन आंसर। ये कब तक का विषय पूछने से पहले आपकी इंडी अलायंस का विषय सोच लेना। उसको देर करने वाले कौन है? पूछ लो, यूबीटी से पूछ लो, जमीन क्यों देर से दिया, उसके वजह से कॉस्ट क्यों बढ़ाया। आपके अलायंस पार्टनर, उनसे पूछो भाई, ना कि मेरे से। लैंड समय पर दिए होते अब तक बुलेट ट्रेन चलता होता। लैंड नहीं दिया और जानबूझ करके मुंबई का नुकसान किया, मुंबई का नुकसान करवाया। मैडम, यूपी को बुलेट ट्रेन नहीं है वगैरह, सच नहीं है मैडम। 2 high-speed train corridors go through UP. First of all, दिल्ली से वाराणसी फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी को ही गए, और उसमें कानपुर और प्रयागराज जोड़कर वो गए। सो दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक ये हाई स्पीड ट्रेन यूपी से ही निकलता है, ठीक है। सो इसके अलावा वाराणसी को रेलवे में कनेक्टिविटी हब माना जाता है। ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से आने वाले पूरे ट्रेन वाराणसी हब में ही होते। रेलवे का बड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट वाराणसी में है, उसके कारण ये उधर जॉब्स भी मिलता, उत्तर प्रदेश का रेलवे नेटवर्क भी बढ़ रहा, और उधर से रेलवे कोचेस का मैन्युफैक्चर भी उधर से ही हो रहे हैं। रेलवे के पूरे ध्यान उत्तर प्रदेश में है। सर,
और बजट का विषय मैं बोल रही हूं, एवरेज एनुअल रेलवे बजट 18 फोल्ड इंक्रीज हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2009 से 2014 तक 1109 करोड़ था। 2009 से 14 तक 1109 करोड़ था उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे बजट में। मगर अब 2026-27 में 20,012 करोड़ हुआ है। 1,000 से 20,000 करोड़। सो उत्तर प्रदेश का प्रामुख्यता इस नंबर से आपको समझ में आना चाहिए। अभी ऑन गोइंग कितना है रेलवे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में? 92,056 करोड़, मतलब 1,00,000 करोड़ तक जाना है। जस्ट 40 करोड़ कम। 92,056 करोड़ रेलवे में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में आज भी है। वो ऑन गोइंग क्या है? स्टेशन डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल्स डबलिंग, फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड कॉरिडोर, ये सब सिस्टमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रही है उत्तर प्रदेश में। सो मैं माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करती हूं, थोड़ा तथ्यों को नजर रखते हुए बातें करें। सो अगले प्रोफेसर सौगता रॉय, वेस्ट बंगाल डस नॉट फाइंड अ मेंशन इन द बजट। बोलते हैं वेस्ट बंगाल बजट में एक बार भी मेंशन नहीं हुआ। ये डेलिबरेटली पता नहीं क्यों मिस इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं। मैं बोलना चाह रही हूँ, वेस्ट बंगाल पूर्वोदय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट में, वो स्ट्रैटेजिकली उनको उधर लोकेशन पूर्वोदय में, उसके तहत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर से बजट अनाउंसमेंट इतना क्लियर करती है, इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दुर्गापुर में एक नोड रख करके आसनसोल दुर्गापुर बेल्ट को पोजीशन करती है और ईस्टर्न इंडियन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर उससे बनेगा। दुर्गापुर उसका एंकर होगा। सेकंड, हाई स्पीड रेल टू नॉर्थ बंगाल, वाराणसी से जो अभी मैंने बताया सिलीगुड़ी जाने वाले ट्रेन, हाई स्पीड रेल नॉर्थ बंगाल को पहुंच रही है। सिलीगुड़ी नॉर्थ में एक ट्रांसिट हब जैसे बनने वाले हैं, वो भी बंगाल में है। तीसरा, जूट रिवाइवल के लिए हमने इतना बड़ा घोषणा की है, नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट, और बंगाल के हुगली बेल्ट में जो जूट मिल्स है उन सब में लाखों जूट फार्मर्स को उसके द्वारा उनका जीवन शैली ही गुजरता है, उनके लिए अलग से नेशनल फाइबर फॉर सेल्फ रिलायंस इन जूट। क्या सिर्फ बंगाल के लिए वो एक अकेला स्कीम नहीं होगा, बड़ा सा स्कीम नहीं होगा, किसान के लिए नहीं होगा, वो भी बंगाल के लिए है। इसके अलावा लेदर एक्सपोर्ट्स, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इनपुट्स, शू अपर का इनपुट्स का भी हमने ड्यूटी फ्री कर दिया, जिससे लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले बंगाल में ज्यादातर लोग पहले 6 महीने के लिए इंपोर्ट करें और 6 महीने के अंदर एक्सपोर्ट भी करना पड़ता था। अभी वो नहीं है, आप इंपोर्ट करो, पूरे 1 साल रखो और उसके बाद आराम से एक्सपोर्ट करो। ये सुविधा लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले के लिए इस बजट में हमने लिया है, वो बंगाल के लिए नहीं है। फिर पूर्वोदय, इसमें टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये पूर्वोदय 5 स्टेट के लिए, हर एक स्टेट में एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन हम बनवाएंगे, इसका अनाउंसमेंट भी हुआ। वेस्ट बंगाल उनके अपने चुने हुए कुछ क्षेत्र को ऐसे हाईलाइट बना सकते हैं, वो अपने स्टेट के इच्छा के अनुसार वो कर सकते हैं, वो भी उनके लिए। ऐसे ही जंगल महल एरिया में जो
बीड़ी बनाने के लिए तेंदू लीफ निकालते हैं फॉरेस्ट से, उस तेंदू लीफ के ऊपर टीसीएस हम कलेक्ट करते थे, उसको 5% से 2% को कम करवाया इस बजट में। उसके बेनिफिट सीधा बंकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर में जो काम करते हैं, फॉरेस्ट में जाकर के तेंदू पत्ता ले आकर के बीड़ी वर्कर को देते हैं, उनको सीधा मिलेगा। ये सब बंगाल के लिए नहीं है क्या? बंगाल का मेंशन नहीं हुआ, ऐसे आरोप लगा रहे, वो गलत आरोप है। फिर और मैं ये कहना चाह रही हूं, हमने केमिकल पार्क का अनाउंसमेंट किया और वो केमिकल पार्क को चैलेंज मोड में ले आने के लिए क्या बंगाल अपने साहस दिखा नहीं सकते कि जहां उनका हल्दिया पेट्रोकेमिकल यूनिट के बगल में केमिकल पार्क अगर बनना चाहते हैं, हमने तो 3 केमिकल पार्क अनाउंस किए बिना स्टेट का नाम लेते हुए। बंगाल सामने आने दो, केमिकल पार्क बनने के लिए वो भी सेंटर के साथ काम करें। बंगाल के जनता के हित में ये कर नहीं सकते हैं, मगर ना, बंगाल के लिए कुछ नहीं दिया। फिर सिटी इकोनॉमिक रीजन का अनाउंसमेंट हुआ। इसमें हम बोल रहे हैं, आप उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, मैंने नाम नहीं लिया, कोई भी स्टेट आ सकते हैं सामने। हर साल अगले 5 साल के लिए हर साल 1000 करोड़ देंगे एक सिटी का इकोनॉमिक रीजन बनाने के लिए। क्यों? कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर उसमें शामिल हो सकते हैं। 5000 करोड़ लोग 5 साल के लिए, कौन रोक रहा भाई आपको? नहीं, हम गुस्से में हर बार सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है और डांट खाएंगे उधर, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाओगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, सेंटर आपको हेल्प कर रहा है। ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले। बंगाल आइए, सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं, वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले आओ। बंगाल के हित में अगर चाहते हैं, सामने आओ, ले लो। बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी आएगी बंगाल में। मैडम, एक और विषय मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मरोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो, जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ, तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? इस हाउस को
आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी। एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, अब इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी जीरो आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल शार्पनर मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय। उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय, और इसमें एक बार नहीं दो बार नहीं मैडम, मैडम आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, जीरो। ये कट मनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कट मनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। मैडम, एक और विषय, हर विषय में, डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई विल से, स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोले, मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो, ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर
सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना। वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक माननीय सदस्य प्लीज। ईस्ट फ्रेट मैडम, इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया। दंकुनी क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है। आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। I have announced new dedicated freight corridor दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है। इसलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। इसमें एक विषय में हाउस के ध्यान ले आना चाह रही हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको ये बात पहले से बोल रहे हैं, 2014 से बोल रहे हैं कि हमसे पहले रेलवे का कितना भी अनाउंसमेंट हुआ, वो जो कंप्लीट नहीं हुआ उन सबको कंप्लीट पहले करो। चाहे वो कोई और पार्टी ने अनाउंस किया होगा, फिर भी कंप्लीट करो, उसके बाद हमारे अनाउंसमेंट। ऐसे 1990 से मैडम 28 प्रोजेक्ट्स अटका पड़ा था। उन सबको हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 1990 से जो पेंडिंग है। और 172 ऐसे प्रोजेक्ट्स 2000 से 2014 में घोषणा हुआ है, उन सब का काम भी अभी हम करते जा रहे हैं। सो हमने ये नहीं किया कि हमसे पहले जो भी अनाउंस किया हमें परवाह नहीं, हम हमारे काम करेंगे। नो, वी आर कंप्लीटिंग इवन दैट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड अर्लियर। मगर ये क्रेडिट जहां मैं दंकुनी से सूरत बोल रही हूं, उसको ममता जी का अकाउंट में डालना सही नहीं। एक और बात माननीय अभिषेक बनर्जी का विषय में, वो बोले हैं हम आई कम फ्रॉम अ भारत करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल, सर्वाइवल इज बिकमिंग लग्जरी, और ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए। सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली को महिला, उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में
MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। They should not be allowed to come outside the house. आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रही हो। और आपको he said it. कोलकाता में ही 24 he spoke at that time. Where were you at that time? Sir, if a friend rapes you, कौन क्या कर सकता है? एक बयान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे कोलकाता के रेप के ऊपर। What can be done if a friend rapes you? महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया, टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है 36 स्टेट्स का लिस्ट में, 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत मैं इससे आगे बढ़ती हूँ मैडम। बंगाल का तो थोड़ा एक आध उदाहरण दिया मैंने, और बाकी है, फिर भी मैं मूव ऑन करती हूँ। कम्युनिस्ट लोग खड़े होकर के इधर बात किए बजट के ऊपर कम्युनिस्ट लोग बात किए। हमें कुछ भी नहीं मिलता, केरल में कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट लोग जहां भी सरकार में थे मैडम, उधर के आर्थिक व्यवस्था इतना नीचे चले जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है उधर। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को उधर से हटाया और चले गए दूसरे में। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक स्टेट मेहनत करती है, मगर हम देख रहे कम्युनिस्ट लोग का उनके अपने समय पर कोई उनका करते नहीं है इंडस्ट्री बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हो रही है केरल में और बंगाल में और तमिलनाडु में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके द्वारा बहुत सारे बिजनेस होता है, उसमें भी सिटी एंड
के कारण बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी 399 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं केरला में। 125 political murders हुआ है। 30 killings happened during the current CM's time. केरला के विषय बोल रही हूँ। I am talking about Kerala. Go hear it. Vulnerable sections, madam, जो ट्राइबल लोग होते हैं, SC लोग होते हैं, highest IPC crime rate in India of 661 per lakh population, according to NCRB data, is from Kerala. और scheduled tribes में 35.5 पर लाख पॉपुलेशन में ST लोग के ऊपर क्राइम होता है केरल में। NCRB डेटा है। और ऐसे ही अट्रॉसिटी अगेंस्ट ST 6.2% इंक्रीज हुआ है केरल में। और केरला असेंबली में ही बताया गया कि SC के ऊपर 1.2% इंक्रीज हुआ। So मैम, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें की, अभी सुनना चाहिए। वो थोड़े जीजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए। हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए ग्रिप के ऊपर। और ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदम्बिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारी पार्टी वाला है वगैरह, वो भी बताए। ठीक है जी। बिट्टू को गद्दार का। बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया। ये एक चेयर में बैठे हुए दोस्त है, हमारे बिट्टू ट्रेटर हो गए। सो ऐसे कहने वाले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहुत सारे विषय बताए, उनको मैं जरूर एक पॉइंट में जरूर आंसर करना चाहता हूँ। मैं वो सही एक विषय उठाए। Please listen, I'm talking about LOP. Listen, you will be keen to know. नहीं, Suresh, you're not wanting to listen on LOP? Kodi Kundil Suresh, माननीय your मंत्री जी, LOP and माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री प्लीज। AI और डेटा के ऊपर बहुत चिंता व्यक्त की कि भारत के डेटा विदेश में चली जा रहे हैं। सही नहीं है, क्योंकि हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं डेटा सेंटर्स को, जिससे भारत देश में डेटा रहे और भारत के युवा को जॉब्स मिले। उसके लिए हम कर रहे हैं डेटा सेंटर के लिए प्रावधान, और उसको बिना समझे ये बोल रहे डेटा आप विदेश का कंपनी को दे रही हो। हमारे यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ इंसेंटिवाइज कर रहे हैं इसीलिए कि डेटा सेंटर भारत में रहे, डेटा भारत में रहे और डेटा हमारे युवाओं को मैनेज करने के लिए हमारे हाथ में रहे। ये एक विषय है। दूसरा, इंडिया AI मिशन 1000 करोड़ का एलोकेशन इस बजट के इस विषय के लिए एलोकेट किए हैं, और हमारे इंडियन कस्टमर्स का सर्विस अच्छा हो, क्लाउड विदेश से आने में हमारे डेटा हमारे साथ हमारे कस्टमर्स के लिए सर्विस में आना चाहिए, इसलिए हमने वो एक्सटेंड किए। बट दैट ही इज नॉट, ही डिडंट नोटिस, ही डिडंट रीड इट, मगर एलिगेशन डाल दिए। सेकंड, फूड सिक्योरिटी, फ्यूल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, ऐसे बयान कर रहे।
अबोध बालक पर सुनो। ये विषय हमारे सांसदगण और उनके सांसदगण सब सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। Go sit and hear, ma'am, please. Ma'am, I'm talking to her, okay? I'm talking. I'm replying Rahul Gandhi. Go sit and hear. माननीय मंत्री जी प्लीज। अरे केसी वेणुगोपाल जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आप चिल्लाते रहते हो, अभी जवाब दे रही हो, उनके लोगों को सुनने के लिए बोलो। अबोध बालक, अरे अबोध बालक को बोलो। मैडम, फूड सिक्योरिटी वैल्यू एडिशन के ऊपर बात कर रहे थे। आई वांट टू टेल हिम, टोटल फूड सब्सिडी के लिए 2.27 लाख करोड़ बजट में एलोकेशन हुआ है फूड सिक्योरिटी के लिए, और 80 करोड़ लोगों को अभी भी हम जारी रख रहे हैं फ्री फूड। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए बजट में 4064 करोड़ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के विषय में स्कीम के लिए पैसा 4000 करोड़ से ज्यादा अलोकेट हुआ। फिर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, उसके लिए 350 करोड़ अनाउंस किया है, वो जो कोकोनट वगैरह मैंने एक्सपेंड किया। फूड इन्फ्लेशन सबसे लोअर रेट में है, जबकि यूपीए के समय फूड इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, 10%, 11%, अभी तो वो नीचे आकर के 2% से कम है फूड इन्फ्लेशन। फिर वो बहुत बड़ा बयान दिया, जियोपॉलिटिक्स, एनर्जी, वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंस, इन सब के ऊपर बोले कि इतने सारे चैलेंजेस है, बजट ब्लड, ये भी बोल रहे हैं कि हमारे बजट उसको एक्नॉलेज करता है, मगर बजट में इतने सारे हैं उसको पढ़ा नहीं है। क्या क्या है मैडम? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो 50,000 करोड़, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड 50,000 करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है। अनएंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड अगर चैलेंज होता है उस पैसा को उपयोग कर सकते। ये 25-26 में ही अनाउंस हो चुका है, वो पैसा है, उनको उसका ध्यान नहीं है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी फंड 9,800 करोड़ टू काउंटर वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस हमने अलॉट कर चुके हैं, वो उसको भी उनका जानकारी नहीं है, पढ़ा नहीं है। अबोध बालक। एनर्जी सिक्योरिटी, रेयर अर्थ के लिए भारत तैयार रहना चाहिए, माइक्रोचिप्स हम बनाना चाहिए, इसके ऊपर इतना चिंता व्यक्त करने वाला है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये भी पढ़ा नहीं है कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमने critical to insulate India from weaponization of energy matters. The budget pushes for autonomy in critical minerals. Customs duty का exemption हुआ, न्यूक्लियर पावर के लिए 2,500 करोड़ अलॉट हुआ, एंड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ अलॉट हुआ। बजट को पढ़ा नहीं है, आ गए हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बात करने के लिए। फिर बजट में ये भी कहा कि SEZ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंपैक्ट हुआ है ये टैरिफ वगैरह के कारण, उनको डोमेस्टिक एरिया में सेल करने के लिए हमने प्रावधान किया, कस्टम्स ड्यूटी को छूट दिया, सो दैट वो यूनिट्स बच पाएंगे। फिर कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने के लिए, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस ले आने के लिए कस्टम्स में इतने प्रावधान किए। फिर सपोर्ट करने के लिए MSME और आर्टिसान्स को 10 लाख वैल्यू कैप ऑन कोरियर एक्सपोर्ट, कोरियर के द्वारा जो एक्सपोर्ट होता है
उसको भी हमने कैप हटा दिया, जिससे हमारे छोटे छोटे उद्योग बाहर एक्सपोर्ट करने में सुविधा हो। फिर ये क्लियरेंस करने के लिए डिजिटल एक ही प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी एक ही विंडो के द्वारा हो सकते हैं। ये कुछ नहीं पड़ा, आ गए हमें लेक्चर करने के लिए। हमारे देश का इनसिक्योरिटी ये सब है बजट में, पड़ा कि नहीं है? फिर ये जरूर सुनना चाहिए, कांग्रेस के लोग इसको सुनने में क्षमता रखना चाहिए। They should have the strength to listen to this. भारत को सेल कर रहे, भारत फार्मर को सेल कर रहे, मोदी जी सरेंडर कर दिया। मोदी जी किसी देश का हित का विषय में सामने खड़े होकर के बात करेंगे, देश के हित में काम करेंगे, मगर देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक था, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है, और हम रेशन के दुकान से गरीब लोगों को कुछ भी दे नहीं सकते हैं। मतलब रेशन का कोई भी चीज जा नहीं सकते। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बाली के मीट में जाकर के समझौता करने वाले ये लोग हैं। हमारे किसान से MSP दे करके कोई प्रोक्योरमेंट कर नहीं सकते थे। अगर मोदी जी 2014 में आकर के WTO के ऊपर हार प्रकारा, we fought for it and got peace clause so that we can think of the country also, man. This country 2017 से PDS डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं सकते थे, गरीब को रेशन दे नहीं सकते थे, देश को, गरीब को, किसान को बेचने वाले ये लोग हैं। ये सरेंडर करके आए हैं, WTO में जाकर के पूरे सरेंडर करके आए हैं ये लोग। और भारत देश का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर ये आरोप लगा रहे LOP, उनको कोई नैतिक अधिकार बनता नहीं है। 2017 के अंदर पीस क्लॉज WTO में लेकर आए मोदी जी। इसके वजह से कोविड के समय हम सब लोग को रेशन दे पाए, और किसान से आज भी प्रोक्योरमेंट हो रही है। नहीं तो कांग्रेस के साथ चलते हुए हमारे देश का किसान सड़क पर आ जाते। ये सेल करने वाले लोग हैं, ये भारत का किसान को बेचने वाले लोग हैं, ये हमारे गरीब को बेचने वाले लोग हैं। मैडम, लास्ट में एक और विषय, नहीं, पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने दे दिया, और US एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील करने के समय आप पाकिस्तान के साथ भारत को जोड़ने क्यों दिया? और ये कहकर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें सजेशंस दे रहे, नेगोशिएशन कैसे करना है। किसान को, गरीब को सेल कर दिया 2013 में, और उससे पहले 2009 में शर्मल शेख में जाकर के भारत और पाकिस्तान को जोड़कर, हाइफरेट कर और टेररिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम पाकिस्तान के साथ समझौता करेंगे, बात भी करेंगे करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कांग्रेस वाले। पाकिस्तान से इंडिया को जोड़ करके वी विल टॉक विद पाकिस्तान, और टेररिज्म से लिंक नहीं है कहने वाले
ये कांग्रेस वाले आज आकर के हमें एडवाइस दे रहे हैं नेगोशिएशन कैसे करना है। सेल करने वाले आप लोग हैं, किसान को भी, गरीब को भी, इस देश को भी पाकिस्तान से जोड़ने वाले आप लोग हैं। चिल्ला चिल्ला के मेरे आवाज को बंद नहीं कर सकते। ये पूरे देश सुनेगा, ये पूरे देश सुनेगा। आप आकर के इधर हमें एडवाइस दे रही हो। इस किरण रिजिजू ने सही कहा, भारत को बेचने वाले कोई माय की लाडला अभी तक जन्म नहीं हुआ, मोदी जी कभी नहीं करेंगे। थैंक यू मैडम।